السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، چلاس کے مقام گندلوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 6 گاڑیاں دب گئیں اور 2 گاڑیاں دریا میں جا گریں۔ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں ابھی بھی مصروف ہیں۔ اسلام آباد کے G11 سیکٹر میں کچہری کے قریب خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے گاڑی اور قریبی گاڑیاں جل گئی۔ زخمیوں میں وکلاء اور سائلین شامل ہیں، جنہیں پیمز ہسپتال منتقل کر کے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس نے جائے وقوع سیل کر دیا اور ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکے میں مبینہ طور پر ہندوستانی اسپانسر اور افغان طالبان پراکسی ملوث ہے۔ پنجاب پولیس کی اسموگ اور فضائی آلودگی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 26 مقدمات درج کیے گئے، متعدد افراد گرفتار اور 10 لاکھ روپے سے زائد جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ رواں سال اب تک 2388 مقدمات اور 2106 گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ آئی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ازداد اسموگ کریک ڈاؤن میں مزید تیزی اور خلاف ورزیوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی کی ہدایت کی۔ لاہور میں سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ کرائم کنٹرول پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سی سی پی او نے کرپشن کے خاتمے، غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی کرنے اور سکھ یاتریوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور نفرت انگیز مواد کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو فوری ریلیف اور انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب حکومت نے ہارٹی کلچر اتھارٹی ایکٹ 2025 کے تحت اہم انتظامی تبدیلی کرتے ہوئے پی ایچ اے کے ڈائریکٹر جنرلز کو مینجمنٹ ڈائریکٹرز نامزد کر دیا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کے مطابق یہ اقدام بہتر سروس ڈیلیوری، شفافیت اور جدید شہری منصوبہ بندی کے فروغ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کے ویژن کے مطابق صوبے بھر میں عوامی پارکس، گرین بیلٹس اور شاہراہوں کی بہتری پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ کوٹ مٹن میں غریب محنت کش 2 معصوم بیٹیوں کا باپ اپنا گھر مہنگائی کی وجہ سے نہیں بنا سکا۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے افضل فریدی۔ جی افضل فریدی بتائیے گا۔ کوٹ مٹن بستی میانی موضع کوٹلہ حسین میں ہم اس وقت موجود ہیں اور میرے ساتھ 2 معصوم بچیوں کو لیے آنکھوں میں اپنے گھر کا سپنا سجائے یہ نوجوان عابدہ دکھائی دیتا ہے۔ اس نوجوان نے بڑی مشکل سے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے 4 مرلے کا اپنا پلاٹ تو خرید کر لیا، لیکن مکان بنانے کی سکت نہیں ہے۔ یہ نوجوان وزیر اعلیٰ پنجاب مخیر حضرات اور دیگر وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیا کہیں گے بھائی مخیر حضرات کو اپنے مکان کے حوالے سے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اور وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے 2 بچے ہیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، ٹکڑے بیچتا ہوں، بریانی کی ریڑھی لگاتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے نکے نکے بچے ہیں، ان کے لیے خدا کے واسطہ میرا گھر بنا دیں۔ کوئی جو مخرج حضرات جو درد دل والا ہے، میں ان کے لیے دعائیں مانگوں گا ساری زندگی، جب تک زندہ رہوں گا اپنے بچوں کو بھی کہوں گا ان کے لیے دعا مانگے۔ یہ نوجوان عابدہ ہوا روتا ہوئے درد دل رکھنے والے مخیر حضرات سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے یہی اپیل کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ خدا را اگر اس کا کوئی گھر بنا دے تو یہ ساری زندگی ان کے لیے دعا گو رہے گا۔ جی ڈیرہ غازی خان میں رکشہ پرچی ٹھیکیدار کے مطابق پرچی کا ٹھیکہ قانونی طور پر حاصل کیا گیا ہے، جس کے تحت فی رکشہ 20 روپے روزانہ فیس مقرر ہے۔ تاہم رکشہ یونین کی ہدایت پر فی الحال 300 روپے ماہانہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے لیاقت علی۔ جی لیاقت علی بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान या डैबो मोड़ के पास, जैसा कि पर्ची वाला स्टैंड यहाँ बन चुका है और यहाँ 300 रुपये फ़ी रक्शे वालों से हर महीने का ले रहे हैं। अगर ख़ुद रक्शे वाले हजरात यहाँ आते हैं तो उनसे 300 रुपये लिया जाता है, अदरवाइज़ नहीं तो इनके लड़के जब चले जाते हैं रोडों में तो वो 600 रुपये का फ़ीस उनका देने का हक बनता है, क्योंकि लड़कों का भी अखराजात वगैरह है। हमारे साथ आज ही रमज़ान खान वडानी साहब मौजूद है जो इस रक्षा पर्ची का ठेका लिया हुआ है। इनसे बात करते हैं ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, जैसा कि आप रक्शे वाले हजरात को इतना रिलीफ भी दिया हुआ है, वो आप कहते हो कि हमारे पास आए तो वो 300 रुपये दें, अदरवाइज़ कोई लड़के वगैरह अगर रोड पे निकलते हैं 600 लेते हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहते हो? भाई 600 तो हमारा बनता है, 20 रुपये से हिसाब से हमारा 600 रुपये महीने का बनता है। ये तो हमने उनको रिलीफ दिया हुआ है कि आए आप 300 रुपये की पर्ची बनाए। 600 जो लेते हैं हमारा, फिर वो खर्चा भी बहुत होता है उधर। हर लड़के को हम 1000-1100 रुपये डेली का खर्चा देते हैं। 50 लड़का जो जाता है कम से कम डेली का हमारा 50,000 रुपये का खर्चा होता है। उनकी तनख्वाह देनी पड़ती है, रोटी का खर्चा होता है। हम तो रिलीफ देते आए इधर पर्ची बनाए। 500 वहाँ 600 भी कोई किस्मत वाला देता है, कोई 500 देता है, कोई 400। वहीं भी फिर हम उनको कहते हैं यार सख्ती ना किया करो, हमारे पास ले आओ। हमारे पास जब ये यहाँ आते हैं हम उनको समझाते हैं, फिर गाइड करते हैं सारा, भाई ये आप हमारा दफ्तर है, आप इधर आ जाए, अपनी पर्ची 15 तारीख से करा लिया करें। आपको हम रिलीफ देते हैं 300 रुपये। अच्छे अच्छे सारे जो हैं रक्शे वाले वो पर्चियाँ करा के जाते हैं। 31 तारीख को भी शाम को आए हैं रक्शे वाले जो अपने कारोबार करते हैं, जो रोज़ी करने वाले हैं, वो पर्चियाँ बनवा लेते हैं, भाई अगले महीने के में बना दो। बाकी इसके बाद वो भट्टी बिरादरी है, कोई कछेले हैं, कोई दूसरे जिनके पास रक्शे हैं वो आते हैं हमारे से 14-13 तारीख को 20-20, 25-25 रक्शे की इकट्ठी पर्चियाँ बनवा के ले जाते हैं। और इधर जो बैठे हैं अपना ये शोरूम वाले रक्शे वाले, इनके कैंट पर रक्शे चलते हैं जो डेली वाइज देते हैं, लोग मजदूरी करते हैं उन रक्षों पर, वो आते हैं 25-30 रक्शे हैं उनके, वो अपने पर्चियाँ बनवा के ले जाते हैं। अब रक्शे वाले हजरात को आप क्या पैगाम देना हैं? रक्शे वाले को पैगाम यही देते हैं कि आएँ यहाँ, आपके लिए हमने ठंडा पानी भी रखते हैं, आपका इंतज़ार भी करते हैं, बैठे रहते हैं, रात के 10 बजे तक बैठे रहते हैं। जब आखिरी डेट होता है 15 तारीख का, हम रात के तकरीबन 12:30-1 बजे तक बैठे होते हैं। आएँ आप इधर पर्ची कराएँ, देखिए हम बैठे हैं या हमारी गलत बात है या सही बात है, पहले हमें चेक। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना था। रक्शे वाले हजरात को इतना रिलीफ दे दिया गया है कि वो खुद आएँ तो यहाँ पे अपना पुरसकून पुरअमन तरीके से आए, अपना जो रक्शे का पर्ची है वो 300 रुपया पे करें तो यहाँ से चले जाए। उनके लिए यहाँ पे सहूलत भी उन्होंने फराहम किया हुआ है। और इनका ये भी कहना था, जैसा कि कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की जानब से ये टेंडर होता है, टेंडर के बाद ये ठेके पे लिया जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है। उसके बाद जब ये रक्शे वाले हजरात हैं वो आते हैं, कोई रक्शे वाले जैसे लड़ाई झगड़े भी करते हैं, इनका रक्शे वाले हजरात को यही पैगाम आते हैं कि आप खुद आए, अपना मन मर्जी से यहाँ 300 रुपया फीस भर के अपना पर्ची ले जाएं। जी ओकाड़ा में वज़ीर पंजाब बने नवाज शरीफ की हिदायत पर सेहत आबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। फैसल महमूद कॉलोनी में शकील डेयरी यूनिट पर छापे के दौरान नाक़िस सफाई और बनास्पति घी के इस्तेमाल पर प्रोडक्शन मुअत्तल कर दी गई, जबकि 800 किलोग्राम डेयरी क्रीम जब्त करके नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा कि अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। नारान के दिलकश मुकाम बोराई में दी एडवेंचर के नाम से कायम मुनफरिद सयाहती मुकाम पुरानी सकाफत का जीता जागता अक्स बन चुका है। लकड़ी और पत्थरों से तैयार झोंपड़ियाँ, देसी खाने और रिवायती तर्ज़े ज़िंदगी सयाहों को माजी की याद दिलाते हैं। एक सयाह के मुताबिक यहाँ हर चीज़ असली और दिलकश है, लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। इंतज़ामिया के मुताबिक ये मनसूबा न सिर्फ सयाहत बल्कि मकामी सकाफत के फ़रोग़ का भी ज़रिया है। SP डॉल्फिन मोहम्मद खान ने वाल्टन हेडक्वार्टर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया, जहाँ MT सेक्शन, कैंटीन, डे केयर और फिजियोथेरेपी सेंटर का जायज़ा लिया। SP ने 15 कॉल्स पर डॉल्फिन और PRU की रिस्पॉन्स टाइम चेक की और शहरी फीडबैक हासिल किया। उन्होंने बर वक्त रिस्पॉन्स ना करने वाली टीम के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है। पतोके के इलाके फूलनगर में डकैती के दौरान डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू मंशियात समेत मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था और 2 रोज़ कबल कोटवादा किशन में पुलिस एहलकार को जख्मी करने में भी मुलविस था। वारदात में मुलविस 3 डाकू फरार हो गए, जबकि पुलिस ने छीनी गई मोटरसाइकिल और नकदी भी बरामद की। ओकाड़ा में इलाकाई सहाफ़ियों की वाहिद नुमाइंदा जमात रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ट्रेन मार्च पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर से होता हुआ गुज़श्ता रोज़ ओकाड़ा पहुंचा, जहां कायदीन का ज़बरदस्त इस्तक़बाल किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं असगर कादरी की रिपोर्ट।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन उकाड़ा पर, जहाँ पर उस ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा है जो रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो कि इलाकाई सहाफ़ियों की एक नुमाइंदा जमात है, पेशावर तक कराची को ट्रेन मार्च कर रही है सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से। वो ट्रेन उकाड़ा पहुँचने वाली है। उस ट्रेन के इस्तकबाल के लिए सैकड़ों सहाफ़ी जो कि ज़िला उकाड़ा से मुख्तलिफ प्रेस क्लब से तल्लुक़ रखते हैं, रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तो आइए हम इस सिलसिला में सहाफ़ियों से बात करते हैं कि वो इस ट्रेन मार्च के बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं दोस्तों। जो ट्रेन मार्च 5 नवंबर को पेशावर से शुरू हुआ था, वो चंद लम्हों में इंशाल्लाह हमारे कायदीन हमारे पास होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस ट्रेन मार्च का मकसद है कि जो इलाकाई सहाफ़ी हैं उनको भी उतने ही हकूक़ दिए जाए जो शहरों में बैठे बड़े बड़े चैनलों पे बैठे हुए जो सहाफ़ी हकूक़ लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर इंतज़ाम जो ट्रेन मार्च चल रहा है इलाकाई सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे कायदीन पेशावर से कराची तक जो है जगह जगह पे उनका शानदार इस्तकबाल हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर भी शानदार इस्तकबाल होगा। अभी हम मौजूद हैं उकाड़ा रेलवे स्टेशन पे अपने कायदीन के इस्तकबाल के लिए। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो ट्रेन मार्च है वो आज उकाड़ा में पहुंच रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलाकाई सहाफ़ी मौजूद हैं। आप उनको दिखा सकते हैं कि कितने साथी यहाँ पे हैं। भरपूर इस्तकबाल होगा क्योंकि ये जो इलाकाई सहाफ़ी हैं उनको हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। तो उनके हकूक़ के लिए, उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बड़ा ट्रेन मार्च है। मुल्क की तारीख़ में पहली बार जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है सहाफ़ी हल्कों में और हुकूमत के ऐवानों में भी एक तरह का मैं समझता हूँ कि लर्ज़ा है कि सहाफ़ी अभी खड़े हो गए हैं अपने राइट्स के लिए। तो वो अभी अपना हक मांग करनी छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, ये ट्रेन मार्च दरअसल एक ट्रेन मार्च नहीं है, ये इलाकाई सहाफ़ियों के लिए एक जो है ना जदोजहद का नाम है। असल में हम चाहते हैं कि जो खबर होती है ना, ये तो इलाकाई सहाफ़ी इकट्ठी करते हैं। पता नहीं मुश्किल से बेचारे सुबह निकलते हैं, कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी पे निकलता है, इधर उधर से खबर इकट्ठी करता है और उधर इदारों को भेजता है। और इदारे जो है उधर जो सीनियर बंदे बैठे हैं वो हमारी खबर चलाना तो दूर की बात, वो चेक भी नहीं करते। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो मराहत हैं जो असल में इलाकाई सहाफ़ियों को मिलनी चाहिए वो ले रहे हैं। तो इसलिए हमने ये ट्रेन मार्च की। ट्रेन मार्च बहुत अच्छा इक़दाम है। हम उनके साथ यकजहती के लिए आए हैं और हुकूमत को भी चाहिए कि ये जो इलाकाई सहाफ़ी हैं इनके साथ ताउन करें। हम इस वक्त मौजूद हैं उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर, जिस पर हमारे रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उकाड़ा के सहाफ़ी मौजूद है और हमारी मरकज़ी क़यादत जिसने ट्रेन मार्च का ऐलान कर रखा है। पेशावर तक कराची तक हमारा ट्रेन मार्च जारी और सारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ चौधरी ज़फ़र इकबाल, सदर रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। आज हमारी जो मरकज़ी क़यादत है सैयद शफ़क़त हुसैन गिलानी, जो हमारे मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान के, उनकी क़यादत में वो रवां दवा हैं। आज इंशाल्लाह वो तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुँचेंगे। यहाँ पर उनका इस्तकबाल करने के लिए तकरीबन यहाँ पर सैकड़ों सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद हैं। उनके फूलों की पत्तियों से और माला डाल के उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। और मैं अपनी पूरी क़यादत को सलाम पेश करता हूँ जिनकी एक बहुत बड़ी काविश है। इसके अलावा मैं गुजारिश करता चलूँ कि हमारे जो इलाकाई सहाफ़ी हैं ये फ्री ऑफ कास्ट काम करते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ इलाकाई सहाफ़ी इस ट्रेन मार्च के सिलसिला में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इसी असना में ट्रेन लाहौर से उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि इलाकाई सहाफ़ी अपने कायदीन का कितने पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं और अपने हकूक़ की जद्दोजहद के लिए वो इस वक्त उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और RUJ सहाफ़ी तंजीम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने कायदीन के गले में हार डाल रहे हैं और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। बहुत जोश व खरोश है। असगर कादरी, स्पेशल TV, चूचक। बुरेवाला में पीरा फोर्स का गोल चक्कर में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुकर्रा हदूद से तजावुज़ करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की गई।
दुकानों के बाहर स्टॉल्स और रेहड़ियां भी हटा दी गई हैं। सर्दियों की आमद होते ही हर गांव, कस्बे और शहर में कदीम और जदीद तरीके से रुई को प्रोसेस करने के लिए लोग मशीनरी का रुख करने लगे। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं शहबाज अहमद की रिपोर्ट। कपास की फसल पाकिस्तान की मईशत में नहायत अहम मुकाम रखती है। कपास से रुई हासिल की जाती है जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। रुई को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। इन मराहिल में एक मरहला पेंजा पर रुई की मुरम्मत करना है। पेंजा एक ख़ास आला होता है जो पुराने वक्तों में हाथ से चलाया जाता था, जिसकी मदद से रुई के गट्ठों को खोला जाता था, उनमें से बीज अलग कर लिए जाते थे और रुई को नरम और हमवार शक्ल दे दी जाती थी। लेकिन अब दौर जदीद में ये काम पेंजा मशीनरी से किया जाता है। इस काम का आगाज़ सर्दियों के शुरू होते ही हो जाता है। लोग अपने पुराने गद्दे, तकिए और रदाइयाँ इन पेंजा मशीन पर लाते हैं, जहाँ पर कारीगर बड़ी महारत से इस रुई से कचरा, बीज और तिनके वगैरह निकाल कर इसको ऐसे प्रोसेस करता है कि वो बिल्कुल नई नई और नरम हो जाती है। इस हवाले से जब हमारी कारीगर से बात हुई तो उसका कहना था, जैसे गर्मी मौसम चेंज होता है, सर्दी शुरू होने वाली होती है, तो लोग अपने घरों से पुराने गद्दे, रजाइयाँ और तकिए वगैरह लेकर आते हैं और हम उसको ना रिफ्रेश कर देते हैं। माशाल्लाह काम ठीक है। वो अभी जो है ना यंग टैलेंट का रुझान कम हो गया है। जो पुराने लोग हैं ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या शादी ब्याह का होता है फंक्शन, वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यंग टैलेंट का रुझान इधर नहीं है। कॉटन इस वक्त बहुत महंगी हो चुकी है, तकरीबन 28-30 हज़ार के करीब है। तो इसलिए जो है ना वो लोगों का रुझान कम हो गया है। वो विकी रज़ाई और डिस्पोजेबल जो आते हैं कंबल वगैरह वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये देसी रुई की रज़ाई जो है ना बहुत अच्छी है, बेस्ट है। इसकी जो गरमाइश है वो विकी रज़ाई या दूसरी कंबल वगैरह से अच्छी है। रुई को पेंजे पर मुरम्मत करना एक मेहनत तलब मगर अहम काम है। ये हमारे देही हुनर, सकाफती वर्से और मेहनत की एक खूबसूरत मिसाल है। ये काम रोज़गार का ज़रिया है। इस फ़न की बका और जदीदियत के साथ हम आगे वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि हम अपने मुकामी हुनर और सनत को तरक्की दे सकें। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, स्पेशल टीवी, कसूर। झंग में लिटिल वन कंप्यूटर अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम लिटिल इन्वेंटर्स एक्सपो का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं इमरान गुल की रिपोर्ट। झंग में कायम एक निजी कंप्यूटर अकेडमी की जानब से नन्हे मौजूदों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। एक्सपो में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालबात ने शिरकत की और अपनी तैयार करदा तख्लीकी प्रोजेक्ट्स और इजादात पेश की। तलबा का कहना था कि ऐसे प्लेटफॉर्म इन्हें अपनी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करते हैं। इसमें मदर को अलर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट बना है और ये जैसे भी बेबी हिलेगा या मदर को अलर्ट हो जाएगा और मामा आके प्रोजेक्ट बेबी को देख लेंगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कंप्यूटर क्लब का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दी ताकि हम ये प्रोजेक्ट आके डिस्प्ले कर सकें। एक्सपो में शरीक अफसरान और शुरका ने बच्चों की इजादात को खूब सराहा। बच्चों को एक आने वाले मुस्तकबिल में समझने के लिए टेक्नोलॉजी को एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है और उनमें सबसे ज़्यादा बात यह कि कल को आने वाले मुस्तकबिल में बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने मुस्तकबिल को अच्छा कर सकें, ताकि दुनिया के साथ तेज़ी से चलने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक बच्चों ने टेक्नोलॉजी और साइंस पर मबनी मॉडल्स पर शानदार काम करके तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जो काबिल तारीफ हैं। ये हम छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, ऐसे बच्चे जो टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स बनाते हों। हमारा थीम है IoT, रोबोटिक्स और AI के ऊपर। ये सारे बच्चों के AI, रोबोटिक्स वगैरह के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं। पिछले साल इन लोगों ने प्रेजेंट किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले एक साल में अपने सारे माइलस्टोन्स अचीव किए थे। ऐसे एक्सपो का तसलसल बच्चों के अंदर एतमाद, तहकीक और जिद्दत को फरोग दे सकता है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने तहसील कैंट का दौरा किया और म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत भी की है। नालों की नाक़िस सफाई और बसरी आलूदगी पर बरहमी का इजहार करते हुए वासा, LWMC और मुतलका महकमों को मौसर सफाई, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और पैच वर्क मुकम्मल करने की हिदायत की। DC ने कहा कि क्लीन लाहौर मिशन के तहत शहर को मिसाली बनाने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक लेस्को की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शालीमार डिवीज़न में लाहौर ग्रैंड मार्की में बिजली चोरी पकड़ी गई, जहां 9 कैबिनेट और 2 स्प्लिट AC बगैर मीटर के चल रहे थे।
मीटर्स मुनक़ता कर दिए गए और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि बिजली चोरी कौमी जुर्म है और किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जामशोरों के कोटरी कल्चर कॉम्प्लेक्स में सिंध गवर्नमेंट लाइब्रेरी में कमीशन इम्तहानात की तैयारी के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गज़नफ़र अली क़ादरी और SSP ज़फ़र सदीक छांगा ने शिरकत की। DC ने तलबा को मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और इम्तहानी हिकमत अमली पर मुफीद रहनुमाई दी, जबकि दीगर अफसरान ने कामयाबी के अहम निकात पर रोशनी भी डाली। प्रोग्राम के अख्ताम पर DC जामशोरों ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। उबाड़ू के करीब रोंती के कच्चे इलाके में चंद रोज़ कबल झगड़े में शदीद जख्मी होने वाला नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मज़ीद तफसील देखते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, उबाड़ो के करीब रोंती के कच्चे इलाके में चंद रोज कबल दमशर दमदू सिर्रा बिरादरी के दरमियान पुराने तनाज़े पर होने वाला खूनरेज़ी झगड़े में शदीद जख्मी होने वाला नौजवान घैरों सिरों जख्मियों को तालाब में लाते हुए आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ गया। जरिए के मुताबिक झगड़ा पुराने तनाज़े की काबिज हुआ था, जिसमें दोनों अफरादों ने भारी असला इस्तेमाल किया। नतीजे में 15 अफराद जाम बाग और 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। खैरुमन सिर्रे की मौत के बाद इलाके में सोग और खौफ की फिजा कायम हो गई, जबकि मकतूल की लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वारसों के हवाले किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मकतूल के इंतकाल के बाद मुकदमे में कत्ल की दिफा शामिल करने की कानूनी कार्रवाई जारी है और इलाके में मजीद कशिश से बचने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। जी सांगा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौला दाद दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास में माजूर अफराद के लिए 1 से 5 ग्रेड तक की नौकरियों में 5% कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। तमाम महकमों से खाली असामियों की तफसीलात तलब कर ली गई ताकि माजूर अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम किए जा सकें। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में कचहरी के करीब खुदकश धमाका हुआ है। इस धमाके में कितना जानी नुकसान हुआ है, मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे रिपोर्टर राजा शौकत। जी राजा शौकत, बताइएगा। जी नाजरीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कचहरी है, कोर्ट है, वहाँ पे खड़ा हूँ और आपको पता है कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक खुदकश धमाका जो है वो सुनने में आया है। अभी ये नहीं पता चल सका कि ये खुदकश था या किसी गाड़ी का सिलेंडर में कोई गैस सिलेंडर जो है वो फटा है, लेकिन इसमें अभी जो इस वक्त तक की इतलात हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त कम अज़ कम को 9 जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर जो हैं वो प्राइवेट लोग हैं और 14 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। आपको पुलिस की पीछे मोबाइल नज़र आ रहा है कि इसमें भी लोग पुलिस वाले बैठे थे, वो सुना है कि शदीद ज़ख्मी हैं, जिसमें इस वक्त तक की जो इतलात हैं उसमें 9 लोग जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं और 14 के लगभग, बल्कि इससे तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि हॉस्पिटल में अभी एम्बुलेंस आ रही हैं और वो लोगों को ज़ख्मियों को लेके जा रही हैं। कैमरामैन असद के साथ राजा शौकत महमूद, स्पेशल TV इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया राजा शौकत, हमें अपडेट कर रहे थे। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।